आपका दिल चाहता है कि आप भी प्राइम मिनिस्टर हो? Everyone's desire and dream to be prime minister. Prime minister हो तो फिर बीबी वाला prime minister. Have you ever been to prison? Yes. You've been to prison? Hospital या actual prison? No, actually. Please help me welcome the one and only Mirza Ikhtiyar Beg Saab. Ushna, I'm very proud to say we are self-made people. We've seen your house. Yeah. All of this is yourself. Yes, sir. Wow. What defines his love for you? It's a very sentimental feelings. It's bonding force. आपने सितारा इम्तियाज भी, तमगा इम्तियाज भी, लेकिन एक अवार्ड है जिसको आप अपना सबसे बड़ा अवार्ड मानते हैं, वो क्या है? हमने गुस्ल किया काबा को मलमल से, आबी जमजम से, आर्क के गुलाब से. इमरान खान. Arrogant. मौलाना फजलुर रहमान. Balancing factor in Pakistan politics. प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी. Master of reconciliation. मरियम नवाज. Cosmetic. बिलावल भुट्टो जरदारी. Hope and future. Assalamu alaikum and welcome to another episode of After Hours with me, Ushna Shah. When we think of influence and power and politics and money, we think of certain individuals that come to our minds. We perceive them a certain way, the way society and the media present them. Like, it's always good to get into their psyche, to know how their minds work, to know what their lives are like. When we learn about them, we can strive to be more like them, or at least have some of the success that they have. Tonight's guest is a very special person. He's loved by so many in my city. He's extremely influential. He has built business empires and he's walked the tightropes of politics. He is a sitting MNA and he's very closely affiliated with a lot of foreign affairs that we hear about. Please help me welcome the one and only Mirza Ikhtiyar Beg Saab. Assalamu alaikum. Thank you. I was so nervous, I fumbled. So good to see you, Uncle. Please have a seat. Please. Welcome to the show, sir. It's so nice to sit with you like this. So let's start with the empire, the business empires that you've built, and the economic success that you have. Ushna, I'm very proud to say we are self-made people. MashaAllah. We started career as a banker. Acha. I was in UBL. Grade 2 officer was the highest position those days. Acha. तो उसके फिर staff studies training ये वो और posted here, and then there was a new bank coming up in Dubai called Middle East Bank. तो वहाँ से offer आई, so I joined them, and then 1977 I moved to Dubai, leaving So UBL. you were working in a bank. Yeah, I'm a banker. All this because we've Yeah. seen your house. Yeah. All of this is yourself. Yes, sir. Wow. MashaAllah, MashaAllah. That's amazing. So it's the greatest satisfaction and the greatest feeling of achievement. Anyway, so दुबई में हमने जो मिडिल ईस्ट बैंक ज्वाइन किया जी. 1977 फर्स्ट ब्रांच, अच्छा. एंड वी यूज्ड टू वर्क टिल 12 o'clock. अगर इंडियन फिल्म देखने के लिए हमें टाइम मिल जाता था तो हम समझते थे कि आज जल्दी बैंक से फारिग हो गए. और वो लास्ट शो जो होता था 11 बजे होता था. तो 11 बजे तक हम लोग पर्सनलाइज सर्विस एलसी की कॉपी जाके दे रहे हैं, डिपॉजिट मोबिलाइजेशन के लिए अरबिया सीख रहे हैं, ये कर रहे हैं. वो एक बड़ा स्ट्रगल था और एवरीबॉडी वाज इन रेस टू प्रूव. अल्लाह ताला ने हमेशा हाईएस्ट डिपॉजिट, हाईएस्ट प्रॉफिट. एनीवे, पैसे बहुत कमाए एज ए बैंकर. उस वक्त मालिक आप ही हमारे शौक होते थे कपड़े बैंकर के, अच्छे सूट, अच्छी टाई, अच्छे शूज. पहले से हम देख लेते थे सेल कहाँ लग रही है. लेकिन मेरे जहन में एक चीज़ हमेशा थी कि वाई आई सेल माई ब्रेन फॉर अदर्स. लोग आते थे अंगूठा लगाने वाले ईरानी, एलसी पे साइन नहीं कर सकते थे, एलसी एप्लीकेशन पे अंगूठा लगाते थे. मैं कहता था यार, और वो मिलियनर बिजनेसमैन. तो मैं ये कहता था कि मैं अपना दिमाग इनके लिए क्यों बेचूं, अपने लिए क्यों नहीं यूज करूं. ये मेरी चीज़ जहन में प्रिक करती रहती थी. 5-6 साल के बाद ऐसा हुआ कि हमने पैसे बनाए. उस वक्त 5-6 लाख दिरहम जमा हो गए थे. और इश्तियाक मेरे भाई हैं जो वो इंजीनियर हैं, मैं बैंकर था. तो उसने भी वहाँ शारजा शिपयार्ड में जॉब करके पैसे कमाए थे. पोलैंड तो 6-7 लाख दिरहम बनते थे. उस ज़माने में उस वक्त बहुत बड़ी बात थी. तो हमने कहा कि कोई स्टीरियो बिजनेस नहीं करना, ट्रेडिंग या रेस्टोरेंट या बुटीक, ये नथिंग.
anything new, innovated, technology based. Right. और ये चीज ने हमें बचाया. Would you recommend that to people today? Pakistani Yes, entrepreneurs? innovation, That's how technology, you get ahead. high tech is the name of the game. And you tapped into that market जब नहीं थी. जी, so 82 में जब 83 में हम शुरू कर रहे थे, there was a new introduction of photo finishing machine called Noriso. Before, if you give your films for processing, you used to get after 30 days, 40 days. People used to send it to London. Maxwell एक company होती थी वो. And then there was new machine introduced. In 45 minutes, you can have your pictures done. And no black dark room, So you this just- and you that. started with that, straight coming. and there we there go. was a heading, revolution in photo finishing and printing. And I jumped into it. मेरी छुट्टियां अभी आ रही थी. I rushed to Wakayama in Japan. Yeah. Seeing the machine, I loved it. I hugged it. I said, I want this machine. This is how you make money, यार. You know, मैं और मेरे husband ये discuss कर रहे थे कि जो careers बहुत, if you really want to make the real money, you have to do the things that are outside of even Not the too arts. common things. You Not know too why? common things. Yeah. You have to really become the backbone of something, Yeah, which innovation. is. So we brought this machine. थोड़े पैसे शॉर्ट पड़े तो बैंकर तो था, ये तो 1 मिनट में एप्लीकेशन दी, वो मिल गए. शुरू किया फोटो मैजिक के नाम से. This word I love. This word has given us this little empire. I love how you're in love with your work so much. I love it. We work very, very hard. Yeah. No, you should. 12 hours, 18 hours a day we used to work. You're very passionate Yeah. about your But work. then God's been very, very kind. And so outside of the business empire that you've built and you've turned it into something so big. then we had 25 branches and all over UAE. Yeah. We moved to Morocco. We have 12 branches. Morocco came to Pakistan, and we was expanding like crazy. आपका बहुत अच्छा relationship भी है Morocco के साथ. Your जी. brother is the consul The general consul general. of Morocco. You are the consul general of Yemen. Yemen. Yeah. Your wife is the consul general of Jamaica. Yeah. And your son is the Oman. consul general Your of friend. my friend, my brother is Poland. Poland. So पूरा, and आपके घर में भी हर जगह झंडे लगे हुए हैं जब आप but आते हैं. ये प्रोग्रेसिव होता है सेंडिंग स्ट्रेट का, जिनको वो समझते हैं कि दे कैन रिप्रेजेंट देयर कंट्रीज, बिजनेस ट्रेड बढ़ा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं. Now I want to talk about politics. सो ये बिजनेस से शुरू करा Yeah. पूरी दुनिया, बट इसकी मैं ज़रा सी कंक्लूजन बतला दूं. जी. बट बैक इन माय माइंड कि यार अपने मुल्क चलना है. इतने पैसे कमा लिए जो $6 मिलियन उस वक्त बहुत होते थे. बैंकों को पे कर दिया जो लोन था. This is the profit, 6 million in the 80s. पाकिस्तान आना तो 6 मिलियन हबीब बैंक मेन ब्रांच हबीब बैंक प्लाजा में ट्रांसफ़र किया, और यहाँ पे हमने मिल ख़रीदा, बेग स्पिनिंग मिल, विच वाज बाबानी टेक्सटाइल मिल. बाबानियों का क्लोज यूनिट था. और फर्स्ट ईयर हमने उसको प्लांट मशीनरी नई डाल के प्रॉफिट मिला, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कराया. और शहीद बीबी से जो दोस्ती हमारी हुई, पहली बार उन्होंने अवार्ड दिया सक्सेसफुल रिवाइवल ऑफ सिख इंडस्ट्री एंड हाईएस्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो हमने किया था. So you made money and brought it into our economy. And that's People transfer the money. लोग निकालते I हैं. brought every penny back to Pakistan. इसलिए And तो इतनी इज्जत बरकत आपको जगह थी मिली, ये माशाल्लाह. कि बेग स्पिनिंग खोला, लकी कॉटन खोला, पाक डेनम डरम का वन ऑफ दोस बिगेस्ट venture. You own a denim company? Yeah. And Umair Beg has never sent me jeans? But then something somewhere lacking there. Something is definitely lacking that. So, acha. So, and we was nominated by Zara, Diesel, Gap, Wow. Jordish, the top brands. Wow, yes, they are. You know. तो उसमें भी हमने बहुत, अल्लाह ने हमें कामयाबी दी amazing, और that's amazing. made good money. वो स्टेज ख़त्म हो गया पैसे बनाने का. भी कितना बनाना, देख लिए बैलेंस शीटें, देख ली स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट. We're all- सेकंड फेज वाज रिकग्निशन, पावर, जान, मुल्क के लिए कुछ करें. उसमें बीबी से जब अवार्ड मिला तो आई यूज्ड टू एडवाइज हर कि सिख इंडस्ट्री की रिवाइवल कैसे कर सकते हैं, बिकॉज वी रिवाइव सिख इंडस्ट्री. What's a sick industry? बंद हो जाती हैं जो Oh, a sick industry, like Bimar industry. Okay. so वो उसका एक
दुनिया का एक And that's सक्सेसफुल where you मॉडल got to है। know BB. हाँ। And I, when we come back from the break, I'm so excited to know how you started in politics, because मुझे ये पता है कि you were very close to BB. Yeah. And you were very prominent in PPP. और मैंने PPP के बारे में भी कुछ सवाल पूछने हैं आपसे. So बिल्कुल। don't go anywhere. We'll be right back right here on After Hours. Welcome back to After Hours. We're sitting with Mr. Mirza Ikhtiyar Beg. Sir, मुझे पहले आप बताएं कि how you entered politics and why PPP? Okay. See, when BB gave me the first award which I received, Revival of Sikh Industry and Highest Foreign Direct Investment, BB asked me कि ये आपने इतने साल बंद यूनिट को 14 साल बंद था वो क्लोज्ड, कैसे रिवाइव भी कर लिया एंड देन यू मेड इनटू प्रॉफिट आल्सो। तो आई एक्सप्लेन हिम कि मैंने जो थीसिस था वो ये था कि रिवाइवल ऑफ सिख इंडस्ट्री कैन कैटापुल्ट इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान। तो सफदर जदी साहब पे हबीब बैंक के प्रेसिडेंट, उसने कहा सिट विद दिस बॉय, that time I used to be very young and this, sit with this guy and हमें आप रेकमेंड करें कि हम क्या पॉलिसी बनाएं कि सिख इंडस्ट्री इतनी सारी हमारी पूरे मुल्क में है, उसमें मशीनें भी लगी हुई हैं, पावर भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, पानी, बिजली, गैस, बट वो गलत मैनेजमेंट की वजह से या शॉर्ट ऑफ कैपिटल की वजह से वो नहीं चल रही, बंद हो गई हैं। तो उनको रिवाइव कर, यहाँ से मेरा बीबी से दोस्ती हुई, जान पहचान हुई और फिर मैं उन्हें एडवाइस करता था। फिर whenever she traveled 16 times and she took me in her entourage 14 times. Oh wow. So I used to travel. So you were very close with her. You had a really great relationship with her. पढ़े लिखे लोग, well dressed people, अच्छी इंग्लिश, ड्राफ्टिंग अच्छी हो। Yeah. तो वो जब आती थी प्लेन में, चकलाला से हम टेक ऑफ करते थे प्राइम मिनिस्टर के प्लेन में, तो सबसे आगे पूछती थी हेलो 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 शेरी, हेलो दिस, एंड देन if you are going Morocco, she said what we can do with Morocco. मैं दी उनको हम अपना locally manufactured plant शुगर का बेच सकते हैं, सीमेंट का बेच सकते हैं, उनसे FTA कर सकते हैं, यूँ गेटवे है, अमेरिका इनके लिए FTA है तो हम डेनम भेजेंगे तो बगैर ड्यूटी वहाँ से अमेरिका भी लोग भेज सकते हैं, तो यू शुड इन कैश। एंड शी यूज्ड टू लाफ। फिर हम देखते थे कि उनकी स्पीचेस जब होती थी उन जगहों पर हमारे पॉइंट जो हाईलाइट करती थी। She was an intelligent woman and she surrounded herself with intelligent people. Amazing. आपने एक, she was the sitting prime minister, the first woman prime minister, Yes. वो भी in a Muslim country. She was such a pioneer. कभी आप उस सीट के इतने करीब रह चुके हैं, आपका दिल चाहता है कि आप भी प्राइम मिनिस्टर हो? ऐसी वो वाली एस्पिरेशन? देखिए, प्राइम मिनिस्टर हो तो फिर बीबी वाला प्राइम मिनिस्टर, जो एक स्पार्क, जब वो जाती थी किसी मुल्क में तो वो प्रोटोकॉल वो खुद देने के लिए तैयार हो जाते थे, वहाँ के जो टॉप हराइकी है कि जो वो किसी को उन्होंने आज तक नहीं दिया। बीबी की एक रिकग्निशन थी, एक बीबी का स्पार्क था, एक प्रेजेंस थी। वो मैं एक्सप्लेन वर्ड्स में नहीं कर सकता। मैंने सुना है बहुत। सही है ना? She is a very charming woman. Presence means you have to look at her again and again and again. Yeah. And this is BB. And this is but do you want to be prime minister? अगर आप वैसे हो तो? It's everyone's desire and dream to be prime minister. But मैं चाहूँगा जिसमें अच्छा नाम भी मिले, जो बीबी के लिए हर एक, चाहे उनका मुखालिफ या उनका पार्टी वाला, जो बातें करते हैं, ऐसी बातें मिले लाइफ में तो वही फिर। That's the charm. Because you were so close to her. मैंने बहुत साल पहले एक किताब पढ़ी, My Feudal Lord. उसमें तहमीना जी की उन्होंने मेंशन किया, मुझे पढ़े हुए भी कोई 20 साल हो गए इस किताब को, आई बेयरली रिमेंबर इट, लेकिन उसमें उन्होंने एक बड़ी मज़े की चीज़ मेंशन की कि मुस्तफ़ा खर साहब जो थे, because he was with Zulfikar Bhutto साहब a lot and he watched BB growing up, उनको पिंकी कहते थे, वो बच्ची थी, फिर वो उनकी लीडर बन गई and then he was reporting to her, so वो ट्रांजिशन थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल था।
या it wasn't मुश्किल in the sense के किसी के लिए भी वो शायद ना आसान ना हो. इसी तरह से आपने शायद बिलावल को भी बचपन से देखा होगा. And now he's heading the party. So वो transition कैसा है कि एक शख्स जिसको आपने बचपन से देखा हो, and you know I'm pretty impressed by Bilawal. I think he seems like a very stand-up person with great policies. So what was that transition like? Bilawal is very humble, Yeah? very submissive, very interactive. मुझे अभी जब बजट आया तो पहली स्पीच मेरी थी. अच्छा. क्योंकि मेरा बैकग्राउंड है इकोनॉमिक का, DBA अच्छा. है, डॉक्टरेट किया हुआ है. तो दूसरे दिन आसफाक आए कि I have taken some of the points of your speech which I'm going to do today. Is it all right? Yeah. I say you are the. Wow. And Bilawal साहब जब आए मेरे घर पे तो मैंने कहा कि मैंने 2 इलेक्शन लड़ लिए बीबी के कहने से, 2002 का और 2008 का. एंड देन मुझे कैनेडियन नेशनलिटी वगैरह पूरी फैमिली को मिल गई थी, तो ड्यू नेशनल कंटेस्ट नहीं कर सकते. तो वो 2.5 घंटे मेरे यहाँ थे. ऑल द डिप्लोमेट्स सिटिंग देयर, इट्स अ पिन ड्रॉप साइलेंस. एंड बिलावल साहब ने कहा नहीं, यू आर कंटेस्टिंग इलेक्शन, विड्रॉ योर नेशनल. You let go of your Canadian And citizenship? I surrendered my Canadian citizenship. 1.5 साल हो गया. Would you believe it? Why? I'm saying on record. Bilawal Sahab wanted me to contest election. But if there's a from the war, party. And wouldn't they it be used nice one to be word. able to run away? And that I was kicked out. What One was the word? They say Bilawal House जो है वो हमारे हल्के में, जीते हुए हल्के में होना चाहिए. It should be our constituency जिसमें Bilawal House है. Yeah. ये डिफेंस क्लिफ्टन Yeah, yeah, 41 मेरा हल्का है ना ये, जी. जो यहाँ से हम जीते हैं. तो मैंने कभी भी वादा मेरे आपसे, ये सीट जीत के आपको हम ये हल्का आपको देंगे, बिलावल हाउस वाला. मैंने वादा किया था. It's so interesting कि बीबी को गए हुए कितने साल हो गए हैं अब, 2007 में. And अभी तक जो उनके जानने वाले हैं वो उनके बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे she's very much there. You know her spirit. दिल से आदमी बीवी को जो हमें देते हैं, जो भी हम करते हैं, इसमें यकीन करें, it's all but natural. Yeah. So she must have had some impression on everybody. मुझे थोड़ा सा politics के बारे में सिखाएं because मुझे कुछ नहीं पता. आप आ जाएं. मैंने सोचा था. मैंने ये भी सोचा था. बिलावल साहब के पास लेके But मैं अपनी Canadian citizenship नहीं छोड़ी. नहीं, अगर आपने इलेक्शन नहीं लड़ना, अगर आपने सेनेटर, मेंबर नेशनल असेंबली वगैरह नहीं बनना, तो आप पार्टी में I would like to be active in any party that does something for animals because I feel like ये wing is lacking. So अगर जिंदगी में मैं कभी politics में जाऊँ, PPP is a liberal party. PPP is a party of हर तरह के लोगों को हमारे यहाँ आपको मिलेंगे. ये कोई एक सेक्ट आपको नहीं मिलेगा इसमें. और फिर we are very comfortable. हमारे टैलेंट्स पे है, आपको कितना ऊपर ले जाता है. ये है बस पेरीमीटर. I just have a lot of advice that I can give. You know, just so many things we can do. बिलावल साहब ने कहा the voiceless. ये मैं टिकट, वी कंटेस्टेड इलेक्शन, और मुझे खुशी है कि मैंने बीबी से जो किया, वादा किया था, वो पूरा हुआ. वो पूरा हो गया. So how does the party select कि MPA कौन बनेगा, MNA कौन बनेगा? देखिए, MPA तो हमारी फेडरल रिप्रेजेंटेशन होती है. जी. और तकरीबन 9 लाख लोग मेरे हल्के के हैं, 900,000 Wow. कॉन्स्टिट्यूएंसी में. और MNA का काम ज़्यादातर होता है लेजिस्लेशन, Right. कानून साजी जिसको आप कहते हैं. जी. हम कानून वहाँ पे बनाते हैं रिफॉर्म्स के लिए, अमेंडमेंट्स के लिए, टेक्निकल अगर कोई इशू आ रहा है उसके लिए. जैसे अभी 26 अमेंडमेंट हुआ था जी. अपने जुडिशरी के लिए था. मैं देख रही थी. I actually watched that. आपने, हम रात के 1:30 बजे तक, 2 I know, मैं इस्लामाबाद में थी और मैं देख रही थी. और जब जिस दिन हमने साइन किया है, उस दिन जब मैं आ रहा था, मैंने ड्राइवर को कॉल किया, गाड़ी ले आओ, अजान हो रही थी फजर की. अच्छा, that's when you got done. इतनी लेट जाती हैं ये assemblies और ये? नहीं, वो उस दिन वो अमेंडमेंट का प्रोसेस होता है, उसमें काउंटिंग होती है, उसमें एक तरीकेकार से आपको अमेंडमेंट को कंक्लूड करना पड़ता है. How interesting. कभी मैंने अक्सर जब भी मैं भी in passing ही देख रही थी. I remember playing it, या शायद उसका रीरन था. हम लोग रहते हैं पार्लियामेंट लॉजेस में, which is just across. Okay. लेकिन वो सुबह की मुझे अजान हमेशा याद रहेगी, जब हम जा रहे थे पार्लियामेंट से और उधर जाके बस हम गिरे
And Pet just play and exhausting. fast food. Have you ever experienced वो जो मैं झगड़े देखती हूँ असेंबलीज में जो हो रहे होते हैं, आपस में लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, आपने ये क्या कभी आपने फर्स्ट हैंड ऐसा कोई झगड़ा एक्सपीरियंस किया? देखिए, मेरी 2-3 अच्छी आदतें या बुरी आदतें, मैं कभी ज़ोर से भी नहीं बोला। 25 साल से मैं टेलीविज़न में मुख्तलिफ चैनल्स पे मैं वर्चुअली एवरी डे और अल्टरनेट डेज आता हूँ, और जो अपोजिशन के लोग होते हैं उनके साथ पैनल डिस्कशंस रोज़ की तरह होता है। इकोनॉमी पे भी बात होती है और पॉलिटिक्स पे भी होती है, लेकिन मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कन्विंस और गेट कन्विंस की बुनियाद पे बात करें। मैंने कभी ज़ोर से भी बात नहीं की। और गाली देना या बदतमीजी करना तो, लेकिन आपने कभी विटनेस किए हैं ये झगड़े? विटनेस तो हम रोज़ करते होते रहते हैं। पीटीआई वाले आजकल जैसा ही ज़रा सा कुछ होता है वो आके स्टेज के सामने, स्पीकर के सामने प्ले बोर्ड ले आते हैं, एजुटेशन, नारेबाजी, ताकि वो दूसरा पार्टी का जो सेशन है वो नहीं चल सके, उसमें डिस्टरबेंस आए। भाई दीज आर पार्ट ऑफ दी पॉलिटिक्स, जो वो ड्यूटी है उनकी वो कर रहे हैं। हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, किसी बिल फिर भी हमने पास कराए और कराएंगे, और मेजॉरिटी है और ये गिनती का खेल है। और अल्लाह का करम है कि गिनती के नंबर में हम ज़्यादा हैं, और बहुत ज़्यादा हैं। 2/3 मेजॉरिटी जो 225 दरकार थी, 224 दरकार थी, हमने 225 करके दी। Interesting, very nice. On that note, I'm going to take a short break. We'll be right back. Don't go anywhere. Welcome back to After Hours. We are having the best discussion with Mr. Ikhtiyar Saab. Sir, मुझे एक बात बताएं. Have you ever been to prison? Yes. You've been to prison? Has every politician been to prison? Yes, it is a prerequisite. It's like a rite of passage. So what is... Literally everyone's been to Just prison. visualize me behind the bars. Hospital या actual prison? No, actual. क्योंकि अक्सर like politicians को heart attacks It हो was a जाते shorter हैं. period. And then they go to hospitals. When Arbab Rahim was the chief minister and Bibi was coming from the exile, I was made in charge for the reception committee. अच्छा. You know, to make arrangement. And we made the city beautiful with panaflaxes and hoardings and welcome messages. Yeah. And then all those who were coming with Bibi to take care of them, their stay and everything. So, Clifton Defense and adjoining area, Blawal House, that turned out to be beautiful. Okay. मुझे उन्होंने कायम अली शाह को, मुझे और there were 3-4 leaders, अरबाब रहीम was the chief minister, तो उसको किसी ने कहा कि इनको बंद कर दें बीबी के आने तक, तो ये कैंपेन फ्लॉप हो जाएगी, ये सब फेल हो जाएगा, because they are instrumental, they are the guys behind, they are the people spending money, they are the people. तो फिर हमें उन्होंने, हम एक एजुटेशन में थे, सबको पकड़ के और क्लिफ्टन के थाने में बंद कर दिया। फिर पीपल्स पार्टी वाले सब भाग भाग कर आए, जियाले मेरी तो हल्का है तो बहुत बड़ी तादाद में लोग हो गए, तो सबको छोड़ा शाम तक 2 दिन बाद। बट मुझे उन्होंने चीफ मिनिस्टर का ये पहले लिख के दें कि ये पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, बीवी की रिसेप्शन कमेटी से रिज़ाइन करेंगे। तो आई सेड ऑन माई डेथ बॉडी नेवर नेवर। फिर गवर्नर डॉक्टर इशरतुल्लाह बाद जो थे, ये कॉल मी 2 o'clock in the night, आप लिख दें, से लिखने से क्या तो मैंने कहने इन प्रिंसिपली मैं तो एक मिशन पे बीवी आ रही है, हमारी तो खुशी का ठिकाना नहीं है, आप कहते हैं कि उसमें मैं कंप्रोमाइज़ करूं, नेवर। बहरहाल फिर वो बाद में उन्होंने हमें छोड़ा, लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे इस कॉन्टेस्ट में बिहाइंड द बार्स मैं गया और मैंने उनकी बात नहीं मानी, जो आज मैं रिकॉर्ड में फ़ख्र ही आपसे कह रहा हूँ। I'm so proud to say. No, I'm really proud of you too. कि you stood by your principle. Yes. But I will never understand कि एक आदमी has made millions. He's happy, he's healthy, he has a great family, he's a dual citizen of like a developed country. You gave क्या जरूरत है ख्वारी की कि जब भी पार्टी चेंज होती है जेल भेज देते हैं एक दूसरे को? What is the reason to be in politics? Tell me, what is in the life of an MNA? My answer is, my vote से जरदारी साहब सदर बने,
मेरे वोट से स्पीकर डिप्टी स्पीकर बने, हमारे वोट से यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट बने। आपको क्या मिला? जी आपको क्या मिला? हमारी पार्टी को। जब आप सियासत में होते हैं पर्सनली क्या मिला? तो आपकी पार्टी होती है, पार्टी का झंडा होता है। It's hard for me to explain you in words, but party means so much to us. Wow, I can make a movie on you guys. It's too interesting. It's this loyalty and love for your party for all people लड़ते who हैं are... हम, एक दिन में 10-10, 11-11 हमारी जलसे होते हैं, कॉर्नर मीटिंग्स होती हैं। आपको अंदाज़ा नहीं है, हम 1 घंटे सो जाते हैं, 2 घंटे, तो बहुत बड़ी नेमत होती थी। Okay, interesting. Wow. Noreen and Umair used to be with me elections में, campaigns में, शॉल ओढ़ के वो बैठती थी आगे। Is Umair going to run for something? I want Umair to be in politics because ये जो हल्का होता है ना जी, ये नस्लें बनाती हैं। But वो फिर dynastic politics नहीं बन जाते? देखिए, Shouldn't politics be on the vote alone? देखिए इलेक्शन लड़के आना तो डायनेस्टी नहीं है ना। अगर लोगों ने उसको मैंडेट दिया है तो आ रहे हैं। Fair. अगर लोग समझते यू आर नॉट कैपेबल दे वोंट वोट टू Fair enough. मुझे दिया उन्होंने तो मुझे पता है कि मैं उनमें एक गली में। What is your routine like? अब हम आम लोगों को बताएं कि एक जब MNA साहब उठते हैं, उनका दिन जब शुरू होता है तो क्या होता है आपके दिन में थ्रू आउट? मैं तो फजर पे उठता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये चीज़ हल्फिया कह रहा हूँ, सुबह नमाज पढ़ के अम्मी को कुरान शरीफ बख्शता हूँ। अच्छा। और सुबह ऑफिस में सबसे पहले मैं होता हूँ। मेरा साहब 5 मिनट लेट आता, 5-10 मिनट। मैं जितनी चीज़ें होती हैं यहाँ की वो सब ख़त्म करके आजकल तो पार्लियामेंट का भी ये सवाल जवाब सेशन वो भी यहीं से हो रहा है। फिर अभी कल रात को हमारा पाक मोरक्को पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप है, उसका मैं कन्वीनियर हूँ, चेयरमैन। तो उसमें वहाँ के पार्लियामेंटेरियन 20 पार्लियामेंटेरियन हमारे ये मिलके दोनों मुल्कों के आपस में बायलैटरल रिलेशन, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना। तो कल उसका डिनर था इस्लामाबाद में। There was 40 MNAs in my Pak Morocco Parliamentary Friendship Group, जो सिर्फ पाकिस्तान के थे MNAs, 40। Wow, okay. खुर्शीद शाह साहब थे, नवीद कमर थे, राजा परवेज अशरफ थे, you name। वहाँ पे जो लोग आए हुए थे दूसरी पार्टियों के भी थे। तो ये सब चीज़ें पार्लियामेंट में नया गया पर एक जगह बनाई और इज्जत के साथ बनाई। Okay, माशाल्लाह। और वो लोग अपना समझते हैं, चाहे वो मेरी पार्टी के ना भी हों। तो nice। ये अचीवमेंट है। आपकी डिसएग्रीमेंट्स तो ऑब्वियसली होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी पार्टी के साथ हो रही हैं डिसएग्रीमेंट्स और एनिमिटी जिसे कहते हैं या दुश्मनी भी कह सकते हैं, तो इज दैट विद PTI? It's true. Is that happening? It's a right guess. And how bad is that relationship? हालांकि हम स्टैंडिंग कमिटीज में उमर अयूब में साथ बैठते हैं ऑन मेनी इशूज, IMF के ऊपर ये वो मैं सपोर्ट करता हूँ उनको और वो मुझे सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब वो ऐवान में जाते हैं तो वो डिफरेंट उमर अयूब हो जाते हैं, बिल्कुल ही। You know, ये आपस की रिलेशनशिप्स कैसी होती हैं पॉलिटिशियंस में? What is it like? आप लोग सोशली तो मिलते हैं? अब जैसे कोई PTI की तरफ से जैसे अब इनका नाम लिया उमर अयूब, ये ले लें, कोई और ले लें, इफ यू आप उन लोगों को सोशली मिलते हैं कभी किसी गैदरिंग, गेट टुगेदर? शादी में बुलाते हैं, मिलते हैं, वो तो सब सही है और सब सही होता है, इतने गले लग के मिलते हैं। और फिर दुश्मनी होती है वहां जाके। ऐवान में हम डिफरेंट ब्रीड। That's so interesting. That's so interesting. Yeah, but it's like House of Cards. That goes both ways. Yeah. ये नहीं है कि जब वो करते हैं तो फिर हमें भी उनको रोकना, प्रोटेक्ट करना। हमारे लीडर जब शुरू में बिलावल साहब की स्पीच हो रही होती थी, मुझे वो जुमला याद है उनका, एंड आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। Yeah, please. शुरू में जब नया आए थे तो वो भी चार्ज थे, तो हर आधे घंटे के बाद स्टेज पे आके नारे लगाना, हाथ मारना, वो पुराने वाला स्टाइल, ज़ाब वाला स्टाइल ना। I like his new style. तो बिलावल साहब की स्पीच थी तो ये लोग एकदम से 50-60 आ गए। सो आई रश्ड एट द स्टेज, जो स्पीकर जहाँ बैठता है, और हमने उनको रोका कि रिस्पेक्ट द बाउंड्री, इट्स द रेड लाइन, माय लीडर इज स्पीकिंग। Man, it must, it's तो like बिलावल being a साहब ने prince. कहा बेग साहब छोड़ दें, आप आ जाएं, बट मेरी ये कहना वाज Yeah, सो रिवॉर्डिंग। right. सो ये सब चीजें इनको तोल वोल नहीं सकते आप, यू कैन जस्ट फील, एंड दे आर सो वैल्यूएबल। I want to talk about Bibi again for a second, because you were so close to her. Where were you when she was assassinated?
And what was that day like for you? 2008 election. 2008 में था? contesting election. 2007 का इलेक्शन था, फिर 2008 में हम लड़ रहे थे। तो 2007 में इलेक्शन कैंपेन थी। मेरे दोस्त फारूक मज़हर SGS के वो चीफ होते थे उन दोनों में, और वहाँ कॉर्नर मीटिंग बहुत बड़ी थी। तो मेरे सूबाई के कैंडिडेट नजमी आलम पहले उनकी स्पीच हुई थी, फिर मुझे बुलाया गया स्टेज पे, एंड एवरीबडी वांटेड टू हियर मी बिकॉज जो प्रपोजल, जो उनके इश्यूज थे, उनका रीड्रेसल वो मुझे अपने स्पीच में करना था। तो अभी मैं ऊपर ही जा रहा था तो डॉक्टर मुख्तार भुट्टो हैं आगा खान, वो भागे हुए आए कि आज सब कुछ ख़त्म हो गया है। मैं नहीं समझा। मैंने किया, मैं अभी आता हूँ। स्पीच पे माइक पे बुलाया स्टेज पे मुझे, सर बीबी इज गॉन। मैं ऊपर चढ़ने के बाद नीचे आया, फिर मैंने होस्ट जो मेरा दोस्त था जिसने अपने घर में लॉन में बहुत बड़ी ये रखा था, मैंने कहा टीवी ऑन करो। हम भागे और उसके टीवी में जो मैंने देखा, आई कोलैप्स, गिर गया मैं वहाँ पे। और मैंने कहा, और जो लोग बैठे थे, फिर जब उन्हें पता चला तो हम भागे बिलावल हाउस, क्योंकि वही जगह हमारा एक पिवटल पॉइंट होता था। वहाँ पे तमाम सेनेटर, तमाम MPs, ख़वातीन, ये सब आ रही हैं, गले लग लग के रो रही हैं, ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया। इतनी देर में अभी हम बात ही कर रहे थे तो पता चला कि सुबह ही आपने पहुँचना है, घड़ी खुदा बख्श बरियल है, और चार्टर्ड प्लेन करना था जिसमें मैंने बातचीत दुबई से भी शुरू कर दी, क्योंकि वो अरेंजमेंट करने थे। उसमें तमाम टॉप की हराइकी गई थी हमारी बीबी की। और जब हम वहाँ पहुँचे थे तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं बीबी का कफन जो है वो मेरे कंधे पे आया है। मेरे लिए बहुत मुश्किल था मानना। और वहाँ पे लोग जो नारे सुने कि पाकिस्तान नहीं चाहिए, और फिर आसिफ जरदारी साहब का वहाँ ये सुना, पाकिस्तान खपे नहीं, पाकिस्तान चाहिए। मैं उनका हिस्सा हूँ। अच्छा। I'm part of all those things right that happened in history. This is history. This really was history. तो बस फिर हम 3-4 दिन वहीं पे रहे, वहाँ जाके बैठ जाते थे, कोने पे बैठ के रोते रहते थे तमाम लोग। फिर आसिफ साहब को वो वेल बीबी की बतलाई गई, और फिर लाइफ गोज ऑन। लेकिन PPP में हम सोच नहीं सकते थे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की शहादत, फिर बीबी की शहादत, फिर उनके एक भाई शाहनवाज की शहादत, मुर्तज़ा की शहादत, उसी पे आ रहा है मुर्तज़ा की शहादत, और फिर बिलावल को कहेंगे टेक द रेन्स, पार्टी को संभालो, लेके चलना है। कितना बड़ा दिल चाहिए। I will always wonder why. Why? I will just I don't आपने मेरी सिटीजनशिप पे भी पूछा। मैंने आपकी सिटीजन I think I'll never understand unless you're into it or born into it. It's difficult to grasp. हाँ, तो बिलावल साहब जब उस पर आए, और आज पता चला है कि ये इतना टाइमली लीडरशिप उन्होंने इसको संभाला था, वो पार्टी को कंसोलिडेट किया। अब इज a very good mix. He seems to have a good head on his shoulder. I think. तो जी बस ये तारीख कैसा है, और पार्टी में हमारी जो चीज़ सबसे ज़्यादा काउंट होती है 1 से लेके 10 तक, 1 2 3 4 5 6 10 तक, वो लॉयल्टी है। Let me ask you something else. इस वक्त अगर हम पॉपुलैरिटी वाइज देखें मुल्क में, Gen Z को अगर हम देखें, तो you cannot deny that Imran Khan is extremely popular. Obviously he is. We've seen the same thing in the Jialas. We've seen the same thing in the Insafians. ये जो जज्बा है, ये सड़कों पे आ जाना, and you know people are going crazy for each other, for their leaders. Whoever you love your leader, it's in your eyes. I can see it, and I've seen others like you here in Sindh who love their leader. What do you feel? Do you feel that Pakistani politics are becoming too leader-centric? The fact, you know, जब मैं कनाडा में पली बड़ी, तो मैंने कभी भी
इस तरह का जज्बा लोगों में नहीं देखा जिस तरह का आपका आपकी लीडर के लिए, इंसाफियंस का उनके लीडर के लिए, टू अ पॉइंट ऑफ वायलेंस, टू अ पॉइंट ऑफ बर्निंग द कंट्री डाउन। हम मुल्क चला देंगे, हम एक दूसरे को कत्ल कर देंगे, हम एक घरों में लड़ाइयाँ होती हैं कि एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। आई हैव नॉट सीन दैट आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान। पीपल्स पार्टी में और पीटीआई जो दोनों आपने नाम लिए, एक फ़र्क है, हम वो कोई एजुटेशन, वो कोई एक्शन, वो कोई डीड्स पे नहीं जाते जिससे मुल्क को टूटे या मुल्क को नुकसान पहुंचे। अभी आप पार्टी की बात कर रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ जो उनके वोटर्स हैं, मैं बात कर रही हूँ जो आपके वोटर्स हैं। ये जो एक सेंटिमेंट है हमारे मुल्क में, ऑलमोस्ट एक कल्ट फॉलोइंग, ये एक रूहानी अटैचमेंट हो जाता है अपने लीडर। वो आपके आइडियल होते हैं, वो मसीहा होते हैं, आप उनको समझते हैं वो आपको बेल आउट कर सकते हैं, वो आपके मुल्क को बेल आउट कर सकते हैं। क्योंकि हमारा मुल्क एक बुरी इकोनॉमिक स्टेट में, उससे ज़्यादा आपके दिल में जो एक ख्वाब, एक ख्वाहिश जो होती है, वो ये होती है कि एक बेटर फ्यूचर हमें दे सकते हैं, रोटी कपड़ा मकान दे सकते हैं, और हम भी एडवांस ममालिक की तरह, तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज, अच्छी एजुकेशन, ये ड्रीम्स हैं छोटे छोटे जो उनका हक है, राइटली सो। So this is why they're so ये अटैच कर लेते हैं उसके साथ। मैं वैसे सोचती हूँ कभी कि जब बीबी और इमरान खान इकट्ठे ऑक्सफोर्ड में थे तो उन्होंने कभी सोचा होगा कि उनके लिए लोग कैसे लड़ेंगे एक दिन और मुल्क में क्या हो रहा होगा। देखिए, ये भी अगर आप अपने लीडर के लिए नहीं खड़े होते किसी गलत चीज़ के ऊपर, तो मैं समझता हूँ आपका वो सेंटिमेंटल अटैचमेंट जो है वो बड़ा डाइल्यूट हुआ कहीं ना कहीं। तो इट शुड बी खड़े होना चाहिए इंस्टेंटली, जैसे करंट लगता है आप उछलती हैं, उछलना है। आप बहुत अफेक्ट पर्सनली हुए थे जब बीबी? बिल्कुल, हम घड़ी खुदा बख्श में लाड़काना में रहे, हमने 4-5 दिन कुछ नहीं खाया था, सिर्फ चाय पीते थे। On that note, we're going to take a short break. Don't go anywhere. वेलकम बैक टू आफ्टर आवर्स। सर, आप मुझे बताएं कि आपने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हुए हैं ज़िंदगी में। आपने सितारा इम्तियाज़ भी, तमगा इम्तियाज़ भी, लेकिन एक अवार्ड है जिसको आप अपना सबसे बड़ा अवार्ड मानते हैं। ये दुनियावी अवार्ड है, मटेरियल। मुझे जो अवार्ड अल्लाह ताला ने दिया है वो सबसे बड़ा है। वो क्या है? वो ये है कि मैं अपनी वालदा को उम्रे में लेके जाता था 14 साल से। अच्छा। हर बार रमदान में। अच्छा। पहले आखिरी अशरे में, तो बहुत जब रश बढ़ने लगा तो बीच में हम शुरू में लेके जाने लगे, रमदान में लेके। एंड शी यूज्ड टू लव देयर। बल्कि जब पहली बार सऊदी अरब ने अरमरबा टावर बनाया और वहाँ का जो अपार्टमेंट है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स को उन्होंने अलाउ किया, ख़रीद सकते हैं, तो मैंने अपनी मदर के लिए ख़रीदा। वो वहाँ बैठती थी और खाने का वो को देखती रहती थी। वो हरम का हिस्सा था। मरवा टावर इज अ पार्ट ऑफ द हरम। अजान की आवाज पे आप नमाज कमरे में पढ़ें तो हम हरम में नमाज पढ़ रहे हैं। वाह। तो वहाँ पे मैं एक बार मम्मी का तवाफ करा रहा था तो हमें रोक दिया। तो मैंने कहा क्या बात है? उसने कहा जी वो किंग आए और गुस्ले काबा है और जब वो चले जाएंगे तो फिर दोबारा राउंड शुरू कीजिएगा। आई टोल्ड मामा कि मम्मी मेरी भी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं कभी अंदर जाके गुस्ले काबा में हिस्सा लूँ या देखूँ अंदर से खाना काबा कैसा है। तो अम्मी ने मुझे यूँ देखा, ये किस्मी है। बात ख़त्म हो गई। 2 साल 2.5 साल कॉल आई मेरे पास, सऊदी कौंसल जनरल मेरा दोस्त होता था बाकर गजाज, और क्विकली सेंड योर पासपोर्ट, आपको एज अ कौंसल जनरल ऑफ यमन एंड योर ब्रदर एज अ कौंसल जनरल ऑफ मोरक्को रॉयल गेस्ट हैं आप गुस्ले काबा के लिए। वाओ। जल्दी से पासपोर्ट लाओ और परसों जाना चाहिए। आई रश टू माई मॉम। मैंने उनका पैर पकड़ा और मैं वहीं पकड़ के रोता रहा। मैंने नेवर रियलाइज कि माँ की दुआ में इतनी ताकत, और 2.5 साल के बाद मैं तो भूल भी गया था। वाओ। तो That's amazing. वहाँ गए, हम दुआएं लिख के लेके गए थे, लेकिन जब अंदर जाने हुआ, मैं पहले बैच में था, मैं वहीं पे गिर के दुआएं मांगता रहा। लोगों ने नहीं देखा, वापस आ गया, दूसरा बैच आ गया, एंड देन द थर्ड बैच। हाँ, तो मुझे 45 मिनट्स मिले, औरों को 15-15 मिनट। कैसा था अंदर?
अंदर जब मैं गया तो बहुत सारी दुआएं लिख के लेके गया था, बिजनेस के लिए, बहनों के लिए, बच्चों के लिए, उमेर के लिए। वहाँ सब भूल गया मैं, और मुझे सिर्फ दिल की धड़कन आ रही थी, जोर जोर से आवाज। तो फिर जो दुआ वहाँ हुई वही की। अंदर से खाना काबा कैसा है? अंदर से खाने काबा में एक बीच में बीम है जिसपे बर्तन लटके हुए हैं। अच्छा। एक तरफ पुरानी जानमाज है जहाँ हुजूर नमाज पढ़ते थे, तो वो जगह है। एक स्पाइरल है जो ऊपर खाने काबा की छत पे लेके जाती है, वो है। वहाँ पे ऊद जल रही थी, दुखान था यानी धुआं, इतनी अच्छी खुशबू और डिम लाइट थी। और फिर Beautiful. जब वो आए वहाँ के किंग और प्राइम मिनिस्टर और सदर और बड़े बड़े सरबराह ममलिकत, तो उनके साथ हम भी, क्योंकि रॉयल गेस्ट थे, हमने गुस्ल किया काबा को मलमल से, आबी जमजम से, अर्क के गुलाब से। ब्यूटीफुल, वाओ। और उसके बाद हमें खाना काबा का टुकड़ा, अल शाबी फैमिली है जिसके पास चाबी है, उसने रात को डिनर दिया था तो हमें दिया। हम भी यहाँ से चीज़ें कारपेट वारपेट लेके गए थे, उनको दिए। लेकिन ये अम्मी आखिरी वक्त तक आंख से लगाती थी। मैंने ब्रेक से पहले भी आपसे पूछा और ब्रेक के दौरान भी पूछ रही थी, और मुझे जवाब मिल गया कि इस मुल्क ने आपको क्या दिया इन रिटर्न, कि आप बाहर से पैसे अपने यहाँ ले आए, इन्वेस्टमेंट की, पॉलिटिक्स में आ गए, एक डेंजरस गेम, जेल काटी, सिटीजनशिप गिव अप कर दी, पर आपको ये इज्जत इतनी दी कि आप वहाँ जाके ये कर सकें। आई थिंक दिस इज मेरे कद से ज़्यादा बड़ा एजाज़ है ये। और ये पैसों से या किसी और तरीके से कोई भी नहीं ले सकता। इसमें जब ऊपर वाला की मंशा हो और उसको लगे कि आप यू आर वर्दी ऑफ दैट प्लेस टू बी देयर, तो बुला लेता है। सर, यू आर अ फैमिली मैन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। आपके बच्चे जब बाहर पढ़ते थे, you know my family very well. I know your family very well. I love your wife. Your family is wonderful. So tell me, when they were abroad, your kids were studying, आप इतने इन्वॉल्व थे उनकी जिंदगी में, ये मैंने सुना है कहीं से, आप मुझे सही से बता सकते हैं कि आप उनको कॉल करके उठाते थे? जी, वो एक्चुअली हमारे 3 बच्चे हैं। एक उमैर है, वो बॉस्टन में पढ़ रहा था, हार्वर्ड में, और वो मेरे बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड के साथ बॉस्टन में पढ़ा था। तो जब मेरी बेस्ट, आई डोंट नो इफ यू नो मुनीब मन्नू, सो मुनीब एंड महरीन जब मेरी शादी पे आए तो उनका एक रियूनियन हो गया, एंड इट वाज वंडरफुल। तो आपकी ये चादर दुपट्टा मैंने उठाई थी, मैंने मेरी चादर भी उठाई थी, वर दैट क्लोज। जी, सो हैप्पी। तो ये बच्चों को फिर कहीं डर के सोते रहे, सुबह एग्जाम है तो किसी को 1 घंटे पहले है कि उससे मैं रात भर जाग के उनको जगाता था। फिर जब वो निकल जाते थे तो फिर अब इम्तिहान कैसा हुआ उसकी वेट करता था। इतने इन्वॉल्व्ड है। जी हाँ, लेकिन माशाल्लाह सबने अच्छे ग्रेड से, हया ने मॉन्ट्रियल से, मिगल यूनिवर्सिटी से किया, अनम ने क्लीवलैंड से किया, उमैर ने हार्वर्ड में था, और बॉस्टन में बेंटले था, वहाँ से किया। माशाल्लाह, ये इम्पोर्टेंट ये है कि अच्छी मॉरल वैल्यूज हैं, अच्छी कदरें हैं उनकी, सबमिसिव हैं, डाउन टू अर्थ हैं, और अमूमन लोग तारीफ करते हैं उनकी कि आपके बच्चे बहुत मैनर्सफुल हैं। आपकी शादी कब हुई? 1983। अरेंज्ड? 84। इट वाज अरेंज मैरिज। ओके। और वो भी इस तरह से कि मैंने जब फोटो मैजिक शुरू किया तो एक फैशन शो हमने स्पॉन्सर्ड किया था, उसमें मिस इंडिया 1982 बैठी वो कॉर्नर आई थी। अच्छा। तो मैं एग्रेसिव तो था ही एज ए बैंकर, मार्केटिंग। तो फोटो मैजिक की मार्केटिंग अपनी बिजनेस की, जिसमें सब लगा दिया आपने। तो आई टोल्ड व्हाट डू यू जॉइन फोटो मैजिक? But she said, I'm a fashion model. Nothing to do with your photo magic. मैंने कहना वो मैं PR के लिए आपको अपॉइंट करता हूँ। She said, you can't afford. I said, I'll try. तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई and she joined photo magic. Okay. और इंडियन कंपनियों ने उधम मचा दिया जब हेडलाइन आया था मिस इंडिया ज्वाइनिंग पाकिस्तानी फर्म। राइट। ये उनके लिए बड़ा वो था। तो फिर उसने 1 साल काम किया और वंडरफुल पर्सन, हमारी दोस्ती अच्छी थी। बट मम्मी को बहनों ने कहा कि भाई गए, तो आई वाज कॉल्ड बाय मदर एंड आई वाज वेरी अटैच्ड टू माय मदर एंड शी सेड अब शादी करनी है, मम्मी मुझे 1-2 साल दे, वहाँ से तो आपको दूर करे सबसे पहले। हाँ, वो ये करा उन्होंने। I married afterwards and I told Noreen because you told her. I told her, but
It was arranged marriage. What defines his love for you? It's a very sentimental feelings. It's bonding force. Yeah. हाँ, जो असली जो लव है, अगर वो मटेरियलिस्टिक नहीं है, तो वो बाइंडिंग फोर्स है, वो एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट है, वो एक वेरी स्पेशल फीलिंग्स के साथ होता है अगर वो ट्रू लव होता है. But I think it's not very common these days. These days, no? You don't think so? I think so. What are friendships like in politics? सचमुच की दोस्तियां होती हैं, जैसे मेरी इंडस्ट्री को देख ले, बहुत कंपटीशन है, बहुत कम दोस्तियां जो सच्ची हैं. हाँ. आपकी इंडस्ट्री तो उससे भी ज्यादा कंपेरेटिव है. देखिए, दोस्ती में भी कॉम्पिटिटिवनेस हो सकती है, ये आपको बार नहीं करती. हो सकती है. हाँ, देखिए मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ और मेरी एक फील्ड है जिसमें आई एम डूइंग वेरी गुड. हर साल मुझे वी टुक 14 years स्पेशल मेरिट ट्रॉफी अवार्ड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ डेनिम फैब्रिक. तो मेरे अच्छे दोस्त के ऊपर एनवी या जेलस होने के ग्राउंड नहीं बनता. उन्हें खुश होना चाहिए. खुश होना चाहिए, बिल्कुल खुश होना जैसे मुझे भी खुश होना चाहिए अगर जो दूसरों को या मुझसे बड़ा अवार्ड. बिजनेस के बाहर अगर जाएं तो जो सारे मिनिस्टर्स हैं आपस में are they friends, are they competitors, या आपकी करीबी दोस्ती कोई है? डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन. देयर आर सम पीपल वेरी इंट्रोवर्ट. वो जब से आए हैं, पार्लियामेंट शुरू हुई है फरवरी में, 1 साल होने वाला है जी. वो अभी तक हम जाते हैं हाथ मिलाते हैं उनसे, वो यूं कर देते हैं हाथ. अच्छा. बट ऐसे लोग भी हैं कि मेरी कल 40 MNAs मेरे पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप में मोरक्कन एम्बेसडर के डिनर पे गए हुए थे, एंड हु वाज देयर. ओके. तो डिपेंड करता है आप पे. ओके. आप कितनी फ्रेंडली हैं, आप कितना. आपके ज्यादातर जो दोस्त या जो आपका क्राउड है, आप कहेंगे आपकी बिजनेस इंडस्ट्री में है या पॉलिटिक्स में? मिक्स. मेरे डिप्लोमेट्स हैं. अच्छा. ऑल द डिप्लोमेट्स. ओके. वो मेरी फर्टर्निटी है, बिजनेस कम्युनिटी है, पॉलिटिशियंस हैं. तो हमारा एंड सोशल सर्किल है. मैं हर रात को 5-6 जगह मुझे जाने ही जाना होता है. 4-5 जगह तो जाने. It's a very like social kind of a situation. शुरू से था. नौरीन ने बड़ा साथ दिया. अब नौरीन जरा पीछे उठती हैं, तो शी ओनली सेलेक्ट दी वन व्हिच शी फील वेरी इंपॉर्टेंट, बट आई गोज ऑल. You Ishtiaq is also choosy. Yeah, very. Umair is choosy. Umair is. I know that, but I like के he knows how to. I mean, ये वापस से सीखा होगा कि he knows how to carry himself with everyone and be very. ये एक skill है to be liked and to be social and to be. ये मैंने भी सीखनी है. आप में है. I don't know आप कैसे करते हैं. You're nice to everybody. अभी हम एक event पे थे जहाँ मेरे husband थे and you were just so lovely to everybody. Yes. And it's really a charm that I would love to. See, at a stage come जहाँ पे वो चीज़ें जो मटेरियल चीज़ें हैं वो तो आपने हासिल कर ली, लेकिन उसके बाद एक लिंक जो है वो आपका पर्सनल टच होता है. yes. और वो आपको एज ए फ्रेंडशिप एक्सप्रेस करना पड़ता है, तो दूसरी तरफ से भी रिस्पॉन्ड आता है. 70-80% रिस्पॉन्ड आ ही जाता है. अच्छा, आई थिंक ज़्यादातर आना ही चाहिए. बिफोर आई लेट यू गो मैं आपको थोड़े से हॉट वाटर में डालूंगी, थोड़ा सा, एंड देन आई लेट यू गो. आई वांट टू से वन, आई विल से समबडीज नेम, और जो पहला वर्ड आपके जहन में आता है आपने वो बोलना है. मैंने आज तक ऐसी गेम अपने शो पे नहीं खेली, लेकिन मैंने आपके साथ खेली है. द फर्स्ट पर्सन इज इमरान खान. एरोगेंट. मौलाना फजलुर रहमान. बैलेंसिंग फैक्टर in Pakistan politics. President Asif Ali Zardari. Visionary and master of reconciliation. Really? Nawaz Sharif. Out of the game these days, he is out of game. Do you think he'll come back? लगता नहीं है. Maryam Nawaz. Cosmetic. This cosmetic applies, it's a broader. It's a broader range. Okay. Yes. And the last one is Bilawal Bhutto Zardari. He's very energetic, very down to earth, hope and future. Interesting. On that note, thank you so much for joining us. Thank you so much. It's been wonderful. So much fun. Thank you. And thank you for being so candid. No, thank you so much. I thoroughly enjoyed, and I hope I shared few things which I really wanted to be shared with. Yes. I think this is going to turn out great. See you guys next time right here on After Hours.